फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मोहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों ऐसी झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के Good morning, good evening, good afternoon, friends. Wherever you are, depends on where you are, which country, कहाँ पर हो. नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण to everyone. अब हमारे साथ हैं प्रीतम जी, JB Jain जी, Mr. Jain, कहती हूँ उनको, and Moini Jacob जी, they're all right now in Faridabad, India. And वैसे originally प्रीतम जी होते हैं उड़ीसा में, लेकिन right now he's visiting Faridabad and his friends Mr. Jain has a beautiful studio in Faridabad and मोनी जी भी फरीदाबाद में रहती हैं, तो उन्होंने सोचा कि इकट्ठे करते हैं, इतना अच्छा इंतज़ाम किया है. And Mr. Jain has a beautiful studio. It's really he does all kind of different programs over there, and he plays all kind of instruments also. Very nice to meet you, Mr. Jain. काफ़ी first time मिले हैं. Welcome to दिल दियां गल्लां. And प्रीतम जी तो आते रहते हैं, अब इस बारी काफ़ी देर से आए हैं. He has a personally he has a little reason for that, but anyway today he's here with us. He's visiting Faridabad and so nice of him to come. And मोनी जी भी फरीदाबाद में रहती है. And I want to welcome all our friends who are here who joined us. Welcome to दिल दियां गल्लां. तो मैं प्रीतम जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि by profession he is an electronics and communication engineer who served for 37 years on radar computers, fiber optic, NA and telecom projects in India as weak as MNCs. But by passion he is by birth a musician. He grew up following all kind of music available to him around him with a dream that one day he will release his private song, which he has done. I'm glad to say that. And when he felt that his family commitments are done, he retired himself at an age of 54 years to pursue his dreams. After nurturing his dream for around 45 years, he released his 3 private songs, including one song written by himself. That's it. Now every movement of life is spent living music, loving it. And he says that DDG is very close to his heart. So I'm very glad that he enjoys coming here and telling stories with songs. तो आज हमारे साथ आए हैं Mr. Jain, जो उनके friend हैं, and he's an advocate. He has a big law office in India, doing practice for the last 35 years and running his own law firm. And he says he's an amateur singer, but I don't think so. That's true. He's probably a damn very good singer. And music is also his passion, and also religious bent of mind and God-fearing. Thank you so much for joining, both of you. And of course, Moni ji जो है, मैं इनका भी देखती हूँ, इनका है passion also is music. Is very impressive. She has a very impressive journey, she said. And she's dedicated singer from Faridabad, Haryana, and has transitioned from being an art and craft teacher to a passionate singer. With their notable presence alongside esteemed artists like Gurga Jasraj, Anu Kapoor, Muhammad Salamat, and Suniti Chauhan, and she has consistently claimed first prizes in various competitions. Notably, Moini's commitment to musical excellence led her to explore Shastriya Sangeet even later in life. Beyond her versatile repertoire, she finds fulfillment in singing gospel Christian songs
and has actively contributed to multiple musical groups since 1994. So welcome to Dil Diyan Galla, and welcome Pritam ji. And now I hand it over to you. आप इतना अच्छा स्टोरी सुनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, गाने सुनाते हैं, and we are just waiting to hear them again. Like last couple of times you came, तो स्टोरी का थोड़ा मजा आ रहा था सुनने में. थोड़ा आप नेक्स्ट बताइए हमको क्या करने वाले हो. And I'm going to share this program, आ, and welcome. नमस्कार सभी को। तो आज उस कहानी को हम वहीं पे थोड़ा सा आराम कराएंगे इटारसी के स्टेशन पे। आज हम थोड़ा सा कुछ और बताने वाले हैं। जैसे जितने भी गाने हमारे फिल्मों में लिखे जाते थे, सिचुएशन बना के पहले दी जाती थी, तब वो जो गीतकार या लिरिसिस्ट जो भी होता है वो उस पे गाना बनाता था, संगीतकार उसको संगीत देते थे, तो वो लिखते। कुछ गाने पहले से ही बने होते थे, उसके हिसाब से सिचुएशन भी लिख देते थे। अब हमारे लिए तो हम जो भी गाने गाते पहले से बने हुए हैं, तो हम उन गानों के हिसाब से फिल्म के अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है, वो हमने कुछ सिचुएशंस अपनी एज्यूम की हैं। अब वो हमारी ऑडियंस बताएगी कि क्या हम वो ठीक से देख पाए, तो सोच पाए, और क्या हम वो ठीक से गा पाए। वो आप सब बताएंगे, आपके कमेंट्स बताएंगे। जो भी आपके डीडीजी के कमेंट्स आएंगे वीडियो के नीचे, वो हम सब पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। तो अभी होता क्या है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन दो श्रेणी ऐसी हैं, जैसे एक तो हमारी माँ और दूसरे हमारे दोस्त, उनसे हम छुपा नहीं पाते अपने इमोशंस। वो हमें ज़रूर पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। माँ को भी पता लग जाता है, वो बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन दोस्त तो बोल भी देते हैं। वो पूछेंगे भाई क्या हो गया, पंख से लगे हुए हैं, कुछ बताओ तो जो अगला गाना है वो ऐसे ही कुछ हालात बताता है, कुछ एहसास बताता है, जिसको सभी हमारे दोस्त और हमारे बहुत नज़दीक से हमें देखने वाले लोग जज कर लेते हैं कि हमें कुछ बदलाव आ गए हैं। वो गाना अब हम सुनते हैं जैन साहब से।
इसके बाद जो स्टेज आती है वो होता है खोए रहने की, जिसमें हम कुछ खोए खोए रहते हैं और सपने देखते रहते हैं। और अगर यही हालात कुछ दूसरी तरफ भी होते हैं तो उसको कहते हैं सोने पे सुहागा। तो जो ये सिचुएशन होती है, सपने देखना, सपनों में खोए रहना, वो सिचुएशन का गाना अब हम सुनते हैं कि उसके बाद होता क्या है।
Beautiful. थैंक यू सो मच। Thank you so much. फिर कभी कभी ऐसे ऐसे ख्याल भी आते हैं कि जैसे वो वैसी ही है जैसा हम सोचते थे, जैसा हमने सोचा, जैसा हमने चाहा, बिल्कुल वैसे ही हैं। और जिसको सपने में देखते थे वो ऐसे ही हैं। तो हम अब जो कह सकते हैं इस सिचुएशन पे, वो अब हम आगे सुनते हैं।
वेरी वेरी नाइस, बहुत ही excellent. थैंक यू, So थैंक यू। welcome all my friends who have अब joined. इस सिचुएशन में Listen to the story. Continuation चल रही है, अभी next सुनेंगे। प्रीतम जी हम हाँ शुरू करें। सॉरी टू हाँ बॉदर जी, यू, मैंने थोड़ा बीच ये में काट दिया। सिचुएशन बेस्ड है, ये वो वाली कहानी नहीं है आई जो नो आई नो। हमारी ट्रेन से शुरू हुई थी, वो वहीं पे रेस्ट कर रही है, वो स्टोरी आगे चलेगी कुछ टाइम के बाद। ये सिचुएशन बता रहे हैं हम कि किस गाने के लिए कौन सी सिचुएशन हो सकती है, तो उस सिचुएशन पे वो गाना है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आप थोड़ा सा लिरिक्स को ध्यान से सुने और उस आदमी को अप्रिशिएट करें जिसने वो गाना लिखा है। बिल्कुल ठीक बात। तो अब क्या होता है कि यदि रेस्पॉन्स दूसरी तरफ से भी अच्छा मिलने लगे तो क्या लगता है, ऐसा लगता है ना जैसे ख्वाहिशें पूरी हो गई, सब अरमान पूरे हो गए। तो उस समय क्या भावनाएं होती हैं, क्या एहसास होते हैं हमारे, वो अब हम सुनते हैं जैन साहब और मोहिनी जी से।
थैंक यू। बढ़िया। लॉट ऑफ कमेंट्स आर कमिंग, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सिंगिंग एंड वेरी नाइस। हाँ जी प्रीतम जी, आपको डिस्टर्ब नहीं मैं करना चाहती। और फिर हम लगभग उड़ने लगते हैं, और जैसे सामने वाले के ऐसे साथ मिलने लगे तो हमारे पंख लग जाते हैं, और उस पंख लगे में हम कितना उड़ते हैं, कैसा उड़ते हैं, कैसा लगता है, कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो अब हम मोहिनी जी से सुनते हैं, उनके इम्प्रेशन एक्सप्रेशंस कैसे हो सकते हैं इस गाने के बाद।
बहुत ही बढ़िया। फिर ऐसा होता है कि कई बार कोई कोई चीज होती, कोई बात होती नहीं है, लेकिन हम महसूस करने लगते हैं। जैसे अचानक देखने लगे कि हम हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस करने में जाता क्या है, कुछ खर्च तो हो नहीं रहा, तो ख्वाब से आने लगते ना दिन में जागते हुए, वही भाव जो है